A very good morning to all of you. So, yesterday we got a new timetable for this week from today's onwards. Each and every day you have a first Google Meet lecture, and according to timetable, after that Google Meet lecture, you will get a video for particular subjects. So, all of you have to be present in the Google Meet, and also you have to watch and do work in each and every session of the video lecture you will be given. So today we are going to start a new concept. Since 2 weeks we are discussing about solutions and its properties. If we discuss from starting that first we completed the concentration units, after that solubility and Henry's law, after that Raoult's law for volatile liquids and non-volatile solute, and last lecture we completed ideal and non-ideal solution. See students, if you have any doubt, you have message me each and if possibility. बहुत ही आप लोगों को अच्छी तरह से ये वर्क करना पड़ेगा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट direct colligative property in the non volatile solute. See, one more sentence you have to memorize or remember, that in the ideal solution and non ideal solution we used the concept of Raoult's law for volatile liquids, but whenever you are solving the question regarding colligative properties, always you have to discuss, write your answer or solve MCQ. You have to use Raoult's law for non-volatile solute. See the difference between the two, ideal and non-ideal, and colligative properties. So what is the meaning of a colligative properties in the non-volatile solute lecture? We completed the definition, the properties of solution, which are depends on number of solute particles, but not depends on nature of the solute. All these kind of properties are known as colligative properties, and a total 4 colligative properties are in our syllabus, that are: number 1, relative lowering in a vapor pressure, and that is also we completed in the Raoult's law for non-volatile solute. Relative lowering in a vapor pressure, when you add a non-volatile solute in a volatile solvent, then what happens? The non-volatile solute did not evaporate, so we cannot get vapors due to that solute. We get only vapors of pure solvent A, or say solvent present in the resultant solution, and vapors due to solvent A becomes a vapor pressure. फिर हम लोग उसको वेपर प्रेशर के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करते हैं. Then we take a ratio, we compare
of lowering in a vapor pressure, because always solvent, vapor pressure of a solvent is always greater than vapor pressure of a solution if we add non-volatile solute. So vapor pressure is only, again I repeat, vapor pressure is only due to pure solvent A in the resultant solution. So we get only vapors of solvent A, and that's why when we measure the vapor pressure, तो वो वेपर प्रेशर किसकी वजह से मिलता है, तो वो ड्यू टू ए मिलेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड करना है इन द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। आप लोगों को लिखना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। सिंबल क्या दिया जाता है, डेल्टा टीबी, delta T. It is our second colligative property. Again याद कर लेना ये, what is the meaning of a colligative property? It is dependent on number of solute particles, means number of moles, number of molecules के ऊपर डिपेंड करती है, but not nature of the solute के ऊपर। 3 marks मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, यू हैव टू मेंशन ग्राफ, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड द थियोरेटिकल पॉइंट्स ऑलवेज। if it is in a 2 marks, if it is in a 3 marks, always you have to mention mathematical steps, graph and theoretical important points. If 3 marks, then you have to answer the constants, values of a constant, details of the constants, then it will be answer of 3 marks. Okay, तो ये आप लोगों को याद रखना है। In this question one more thing we will learn, that is a new definition of a boiling point also. अब फिर से हमें करना क्या है, वही प्रोसीजर पहले हम लोग स्टार्टिंग के अंदर करेंगे कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे आ गया, सॉल्वेंट ए प्लस इसके अंदर हमने ऐड कर दिया सॉल्यूट बी, ये हमारा हो गया सॉल्यूट बी, और यहाँ से हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला जिसके अंदर सरफेस के ऊपर 2 types of molecules are present, but due to B we cannot get vapors, so only vapors of A are obtained, and then vapor pressure of this solution becomes PA. Vapor pressure of a pure solvent we denote it by P naught A. Then we, in the last, we conclude that PA is equal to P naught A into XA. That we completed lowering in vapor pressure. अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होगा, इंक्रीज। What is the meaning of elevation? Increase in boiling point. Okay? तो अब वो कैसे हो गए, यहाँ से हमें क्या था, प्योर सॉल्वेंट था, यहाँ पे 100% वेपर्स मिल रही थी, यहाँ पे वेपर्स क्या होंगे 50%, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, तो वेपर्स यहाँ पे कम मिले। तो अब आप लोग फॉर एग्जांपल देखो कि वाटर लिया, अब वाटर के अंदर शुगर ऐड करो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, but when you add sugar in that solution, sugar will dissolve, and after that you will measure the boiling point of that solution, it will be always higher than pure solvent. Pure solvent is always higher, always. तो ये पॉइंट याद रखना है,
लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर ग्राफ के अकॉर्डिंग पूरा एक्सप्लेन किया गया है. ओके, so on the basis of a graph, now we will understand what is the meaning of elevation. ग्राफ आप लोगों को दिया गया, यहाँ पे लिया गया वेपर प्रेशर और यहाँ पे लिया गया टेम्परेचर. जब आप लोगों को प्योर सॉल्वेंट दिया जाए, वाटर है, विंटर सेशन में हम लोग ऑलवेज पानी गर्म करते हैं फिर नहाते हैं, तो मतलब जब प्योर सॉल्वेंट उसको टेम्परेचर देते हो तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि वेपर्स के अंदर जो कन्वर्जन होगा वो फास्ट होगा. तो मतलब मान लो कि वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है. ये ग्राफ किसका हो गया, प्योर सॉल्वेंट ए का. अब क्या होगा, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला. ये क्या हो गया, सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया, सॉल्यूशन का ग्राफ हो. अब यहाँ पे मान लो कि ये 1 एटमॉस्फेयर इसको हम लोग मान लें, तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन नया क्या दिया जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट. अभी तक हम लोगों ने ऐसा ही सीखा हुआ है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट कर दे उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. लेकिन आज नया डेफिनेशन, इट इज अ टेम्परेचर at which it is a temperature at which the vapor pressure of a solution becomes equal to vapor pressure equal to vapor pressure of atmosphere is known as boiling point. क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मान लो 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर अगर मेजर किया जाए तो ये पॉइंट के ऊपर दोनों इक्वल हो रहे, टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर. तो यहाँ से इसको टेम्परेचर को ले लें तो ये टेम्परेचर मिला. इस टेम्परेचर को नाम दे दिया गया TB0. और अगर इसको मेजर करें सामने तो ये क्या मिला, ज़्यादा मिला इससे, तो इसको क्या नाम देंगे, TB. तो व्हाट इज डेल्टा TB चेंज, तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB0 माइनस TB0. डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TB माइनस TB0. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डेल्टा TB, डेल्टा TB इज elevation in boiling point. Now what is TB, boiling point of solution. What is TB0, boiling point of solvent, pure solvent. और इसके बाद जब एक्सपेरिमेंटली ये सब कुछ फाइंड किया गया, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, तो ये डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला हमें क्या, मोलालिटी के ऊपर. और फिर जब कांस्टेंट को हटाया गया तो डेल्टा TB इज इक्वल टू आया KB इंटू M. मोलालिटी को आप लोग बेसिक फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज mass of a solute in gram multiplied by 1000 divided by molecular mass of solute into mass of solvent in kilogram. Okay, what is the KB? KB known as molar elevation
कांस्टेंट और एक पॉपुलर नेम दिया गया इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ओके, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये आप लोगों को क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग 2-3 सम्स इसके ऊपर अब सॉल्व करेंगे, नोट डाउन करते रहना। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन द एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। कल हम जब सुबह मिलेंगे इन अ गूगल मीट लेक्चर, तो एट दैट टाइम वी विल लर्न फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। और उसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, सो बी प्रेजेंट, ओके। चल, तो यहाँ से हम अब स्टार्ट करके 2-3 सम्स किए जाए। टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी सम्स आप लोगों को आ रहे हैं वो सब कुछ कैलकुलेट करते रहना साथ में, एंड जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो आप लोग। चल, अब मैं यहाँ से सम्स आप लोगों को दे देता हूँ फ्रॉम मॉडर्न ईबीसी। चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 1। A solution containing 0.730 gram M4, हाँ घर में कपूर यूज करते हैं M4, मोलर मास इज 152। शायद ये वीडियो के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा प्रॉपरली, ओके, यस इट इज प्रॉपरली विजिबल। 152 ग्राम in 36.8 gram acetone. This is our solvent and its boiling point given is 56.30 degrees Celsius. Boils at 56.55 degrees Celsius. A solution containing a solution of 0.564 gram of an unknown compound in the same weight of solvent, boils at 56.46 degrees Celsius. Calculate molar mass of unknown solute. चलो, अब हमारे पास यहाँ पे 2 डेटास हैं। A solution containing 0.730 gram molecular mass is given and 36.8 gram acetone, its boiling point is 56.30, boils at 56.55। मतलब ये किसका दिया हुआ है, दिस इज सॉल्यूशन, boiling point of a solution, this is TB naught, this is TB, that's we will get delta TB on the basis of this। चलो, तो फर्स्ट हम लोग आंसर स्टार्ट करें। डेटा लिखा जाए, TB naught is equal to 56.30 degree Celsius, TB is equal to 56.55 degree Celsius, therefore delta TB is equal to TB minus TB naught,
तो 56.55 माइनस 56.30 इज इक्वल टू 0.15 डिग्री सेल्सियस। 0.15 डिग्री सेल्सियस आया। अब हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। अब कैसे करेंगे सोचो जरा, क्योंकि केबी की वैल्यू नहीं दी गई। तो पहले फर्स्ट डेटा के ऊपर से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? केबी। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.15 केबी नॉट गिवन। डब्ल्यूबी मास ऑफ द सॉल्यूट इज 0.73 ग्राम फिर इंटू 1000। मास ऑफ द सॉल्यूट इज 152। मास ऑफ द सॉल्वेंट 36.8 ग्राम। चलो अब यहाँ से केबी को आप लोग को कैलकुलेट करना है और इसका आंसर जो आएगा दैट इज 1.92 केल्विन पर मोल। आंसर क्या आएगा? 1.92, या तो फिर आप लोग केल्विन किलोग्राम पर मोल ये भी यूनिट लिख सकते हो। ये मोलारिटी का मतलब क्या होगा? किलोग्राम पर मोल। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है? इसी फॉर्मूला में mv फाइंड करना है। तो डेल्टा टीबी देखो, अब डेल्टा टीबी चेंज हो गया। यहाँ पे 56.46 है, सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड 56.46। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ओह सॉरी, ये आप लोगों को 30 है, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 25। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी 0.16 डिग्री सेल्सियस। ये 30 है, ये 46 है। चलो फिर से लिखा जाए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट इंटू मास ऑफ ए सॉल्वेंट। So now delta TB is 0.16, KB 1.92 आया। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। WD कितना दिया हुआ है? 0.564 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB फाइंड कर रहा है। WA सेम है 36.8। चलिए यहाँ से आंसर कैलकुलेट करो। तो यहाँ से आंसर एमडी का कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 184 ग्राम आंसर आना चाहिए। चलो कैलकुलेट करो फटाफट। चलो इट विल बी 23 मिनट्स। चलो एक सम मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग होमवर्क के अंदर ट्राई करोगे उसको। अच्छा सा एग्जाम दिया गया आप लोगों को। चलो मैं यहाँ से डिटेक्ट करता हूँ, आप लोग लिखोगे। What would be the molar mass of a compound if 6.21 gram of 6.21 gram dissolved in 24 gram of chloroform CHCl3, 24 gram of chloroform to form a solution that has boiling point 68.04 degrees Celsius. The boiling point of pure chloroform
is 61.7 degrees Celsius, and the boiling point elevation constant Kb is 3.63 डिग्री सेल्सियस पर मोलालिटी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कर देना है होमवर्क के अंदर। कल हम लोग मिलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ इन मॉर्निंग 8:30 ऑन गूगल मीट। ओके, चलो गुड बाय।